So hello dear students, today we will read chapter 7, an imperial capital Vijayanagara Empire, module number 4. In this module we will read about the administrations of Vijayanagara Empire. An administration of Vijayanagara Empire. We will read about the administration of Vijayanagara Empire. So the rulers of Vijayanagara Empire had set up an official administrations. The main objective of this administration was the welfare and happiness of the people. The main features of the administrations are as the very first is king, the king. The king, ये पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का. The king occupied the most important position in the central administrations. He could appoint any of the ministers. He could dismiss any person by his own will. His every word was a command, and he is the supreme authority. All important decisions were taken by the name of the king, by the name of the rulers. He was also known as the chief of the army. In fact, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो राजा के पास होती थी. All the authorities, हम कह सकते हैं he was the powerhouse of all the power. सारी शक्तियों का मुख्य केंद्र था, सारी शक्तियां उन्हीं में सीमित थी. नंबर 2, councils of ministers. Second thing is there, council of ministers. जो दूसरी बड़ी चीज कहलाती है वो कहते हैं मंत्रालय. The king took the advice of his ministers, advice, suggestions. He divided his portfolio to different ministers, and these peoples, they worked under the guidance of the king. Or the king himself appointed only very able and trustworthy men to these posts. कहते हैं ये जो पोस्ट हैं, जो मंत्रालय की पोस्ट है, राजा खुद अपॉइंट करते थे, बड़े ट्रस्टवर्दी पीपल्स को ही अपॉइंट करते थे. Their number was not definite, but maybe they were between 8 to 10. कहते हैं नंबर्स के विषय में फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं इट वॉज 8 to 10. कभी कहीं 8 होते थे, कभी 10 भी होते थे. सो दैट इज डिफरेंट. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज देयर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस. आप देख सकते हैं like here the central government is there and then state government is there. Similarly, during that time periods, Vijayanagara Empire, it was divided into the provinces called Mandalam. कहते हैं जो इस समय भी प्रोविंशियल बटे हुए थे उन्हें जाना जाता था by the name of mandalams.
These provincials they were known by the name of मंडलम। ये मंडलम के नाम से जाने जाते थे, इन्हें हम मंडलम के रूप में जानते थे। और कहते हैं सभी मंडलम्स, these मंडलम्स they were ruled by a person known governor। इन मंडलम के ऊपर जो रूल करते थे गवर्नर्स होते थे, and these governors they were responsible for the peace, for maintenance and maintaining rule regulations। These were under the control of these governors। ये उन क्षेत्रों के वेलफेयर के लिए, शासन करने के लिए completely these peoples were responsible। ये लोग उत्तरदायी होते थे। Now fourth one is local administration। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से हम बात करें अभी की, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट के बाद इट इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। Similarly, it was there the provinces of Vijayanagara empires were further divided into the districts, and these districts they were called by the name Nadus। कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे जिन्हें हम नादूस के विषय में नादूस जानते थे। एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम और फर्दर डिवाइड कर दें, द डिस्ट्रिक्ट्स दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द परगनास। इन्हें हम बाद में और बांट कर दें तो इन्हें परगनास कहलाते थे। जैसे हमने अभी, आप हमारे सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट्स, एंड देन तहसील, सब डिवीजन, then block and then village। Similarly it was there। और कहते हैं इसके बाद गांव आ जाते थे, and they were ruled by the ग्राम पंचायत। और ये उनके ऊपर जो गांव के लेवल के लोग हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। The next is the नायकास and the अमरा नायकास। The Nayakas and Amra Nayakas, these peoples are other, ये बाकी के लोग हैं। कहते हैं the Nayakas and Amra Nayakas played a conspicuous role in the Vijayanagara। They played very important role in Vijayanagara administration। विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर द नायकास एंड द अमरा नायकास, इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। बिकॉज द नायकास, दीज पीपल्स वर कंसिडर्ड एज अ मिलिट्री चीफ। इन्हें हम मिलिट्री चीफ के रूप में जानते हैं। दे एक्सरसाइज पावर इन विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशंस। और विजयनगर की जो पावर को रन करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। These peoples moved one place to another, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। Many peasants who were in search of some fertile land to settle accompanied these नायकास। बहुत सारे ऐसे किसान होते थे जो इस तलाश में रहते थे कहीं अच्छी जमीन मिल जाए। And these remain in the companies of these नायकास, इन नायक के साथ आ जाते थे। So this way they were very important peoples। They played very important role in the administration of Vijayanagara Empire। The next one is there, it is the judicial administration। हम बात कर रहे हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है न्याय प्रणाली, और इसके अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, इट वाज द किंग। द किंग वर फेमस फॉर देयर इम्पार्शियल जजमेंट। राजा अपने निर्णय के लिए बड़ी प्रसिद्ध होते थे, और राजा का जो निर्णय है दैट वाज कंसिडर्ड वेरी फाइनल। द लॉज एंड जजमेंट वर बेस्ड ऑन द हिंदू रिलीजियस टेक्टिस। जो भारतीय न्याय प्रणाली है, एज पर दैट द जजमेंट वाज डन। द क्रिमिनल्स दे वर वेरी सिवियरली पनिश्ड। जो क्रिमिनल्स होते थे, अपराधियों को
काफ़ी बड़ी सज़ा दी जाती थी। एंड many of these criminals they were trapped under the feet of elephants, हाथियों के पाँव के नीचे भी दबा के मार दिया जाता था। Then the another one is their financial administration. नेक्स्ट जो हम मानते हैं उसे फाइनेंस के रूप में जानते हैं, और इसमें भी राजा का बहुत बड़ा रोल था। राजा के पास पावर थी फाइनेंस को मेंटेन करने की। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त वन पीपल दैट वाज अपॉइंटेड एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वोम्स बी कॉल्ड राया रेखा, जिसे राया रेखा के रूप में जाना जाता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर ही हैज टू मैनेज कितना टैक्स आया है, उसे कहाँ खर्च करना है, किस प्रोविंशियल से कितना टैक्स आता है, एंड हाउ मच दे हैव टू स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, हाउ मच इज टू बी स्पेंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। ऑल दैट वाज डन बाय द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा हिस्सा था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का था। इसके अंदर वो सारी चीज़ें थी कि कहाँ किसको डोनेशन देनी है, राजा को अपने इनकम को कहाँ खर्च करना है, एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इट इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अगली बात करते हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और कहते हैं द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हैड ऑर्गेनाइज्ड ए पावरफुल आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम्स। हमने कहा अपने एक्सपेंशन के लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए दे जस्ट मैनेज ए वेरी पावरफुल आर्मी, और दिस आर्मी इंक्लूड एलिफेंट्स, कैवेलरी, इन्फेंट्री। हाथी सेना भी होती थी, घोड़ों की सेना भी होती थी, और इसमें पैदल सैनिक भी होते थे, एज वेल एज दे हैड मैनी अदर्स, और बाकी के भी थे। द हॉर्सेस दे वर इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान, अरबिया। ईरान, अरब कहते हैं, यहाँ से हॉर्स लेकर आए जाते थे, एज वेल एज द एलिफेंट्स दे वर ब्रॉट फ्रॉम ओडिशा, और एलिफेंट जो लेकर आते थे ओडिशा से। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ओके।